Welcome, my dear students. We'll start this session with sine and cosine rule, and then we'll do some practice questions on the same topic. Start करते हैं. Sine rule. And you do not need any knowledge of geometry. Geometry का knowledge तो चाहिए, but trigonometry का कोई knowledge का जरूरत नहीं है. So अगर नहीं भी आ रहा है तो भी चीज़ें जो भी छोटा मोटा आएगा concept trigonometry का, तो we'll discuss that. Okay, so sine rule basically is relationship between ratio of sides and their sines. Relationship between ratio of sides and their sines. ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले. The triangle ABC, and side A will be opposite to angle A, side B will be opposite to angle B, and side C will be opposite to angle C. So sine rule states that side A divided by sine of angle A, corresponding angle A, that is equal to side B divided by corresponding angle, sine of corresponding angle B, and that is equal to side C divided by sine of corresponding angle, that is sine C. So these three are equal. A by sine A, this is equal to B by sine B, this is also equal to C by sine C. क्या क्लियर है? ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइंस के इक्वल है, ये ध्यान रखना है. ठीक है, A अपॉन साइन ए इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2 times capital R. 2 times capital R, where capital R is circumradius of the triangle. So if there is a circle drawn, circle is drawn circumscribing a triangle, that circle is called, this circle is called circumcircle, and radius of this circle is circumradius. So this circle is circumcircle for triangle ABC, and capital R is circumradius. Okay, ठीक है. अब प्रूफ भी देख लेते हैं शॉर्ट में इसका, बिकॉज दैट विल हेल्प. This is triangle ABC, and let us say this is center of circumcircle. Center is O. So this angle will be angle A. ठीक है, and consider this BC, side BC as chord of this circle. ठीक है, अभी सर्कल हमने पढ़ा नहीं है, बट इतना तो स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, so BC is chord of circle. ठीक है, and this BC chord is making an angle A on circumference, angle BAC on circumference, and angle BOC on the center. तो angle BOC, this will be 2 times angle BAC. So if this angle A is called A, this is angle A, so BOC will be 2 times of A. This angle will be double that of angle A, isn't it so? And if we drop a perpendicular from point B on BC, point O on BC, अगर हम point O से BC पे एक perpendicular ड्रॉप करें, so that perpendicular will bisect chord BC, isn't it so? BC को bisect करेगा. So if this point is M, तो BM will be equal to CM. These two will be equal. क्या पार्ट क्लियर है? And also this angle here, this angle, this will be equal to A, because angle भी bisect हो जाएगा. This will also be equal to A. ठीक है, नॉन फोकस ऑन दिस ट्राइंगल, इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं. तो दिस ट्राइंगल इज ट्राइंगल OMC, एंगल MOC, दिस इज इक्वल टू एंगल A. दिस इज द राइट एंगल 90 degrees. OC is capital R, circumradius
of the circle. Okay, so what will be value of sin A? Sin of A का वैल्यू क्या होगा? Sin is perpendicular upon hypotenuse. Isn't it so? Perpendicular upon hypotenuse, and this total side BC was equal to A. तो MC this will be A by 2 because bisect किया है इसको. So MC this is equal to A by 2. So sin of A will be equal to perpendicular, which is A by 2, because this is the perpendicular, the side front of the angle. ठीक है, A by 2 divided by hypotenuse. Hypotenuse is equal to capital R. So sin of A is equal to A by 2 upon capital R, and hence sin of A is equal to small a upon 2 times capital R, and hence we can write that A upon sin A is equal to 2 times capital R. क्या ये क्लियर है? ठीक है. सिमिलरली यू कैन कनेक्ट दीज टू लाइन्स. ए और ओ को कनेक्ट कर सकते हो, एंड नाउ AOC will be double that of angle B by the same logic, because AC is the chord of that circle, और accordingly proceed करके B by sin B will also be equal to 2R. क्या ये बात क्लियर है? So this is the proof for sin rule. Is the logic clear? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, कोसाइन रूल की बात करते हैं. Now this cosine rule is very important because this tells a relationship between three sides, all the three sides of the triangle, and one angle. A relationship between all the three sides of the triangle and one angle. So this connects three sides and one angle. So if we have been given two sides and one angle in any question, we can connect that. और थर्ड साइड पूछा होगा क्वेश्चन में, तो अगर थर्ड साइड पूछा है तो कोसाइन रूल कैन बी अप्लाइड. और थ्री साइड्स आर गिवन, वन एंगल इज आस्क्ड, देन आल्सो वी कैन अप्लाई कोसाइन रूल. ठीक है. सो इफ देयर आर आउट ऑफ दीज फोर items, three sides and one angle, if any three are given, we can identify and find out the fourth one. Is this clear? ठीक है. So again, let us draw the triangle first. Triangle ABC, and opposite angle A will be side A, opposite angle B will be side B, opposite angle C will be side C. Okay. Now let us talk about cos A, cos of A. ठीक है, angle A is formed by sides B and C. Angle A is formed by sides B and C. So cos of A is equal to B square, the two sides का square separately, that is added, जिनसे कि फॉर्म हो रहा है एंगल है, तो B square प्लस C square माइनस द अदर साइड, ऑपोजिट साइड, तो माइनस A square. This divided by 2 times B into C. Again, the two sides that are forming angle A. तो cos of A is equal to B square plus C square minus A square divided by 2BC. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. तो now let us talk about angle B. ठीक है, एंगल B की बात करते हैं. So cos of B will be equal to, angle B is formed by side C and side A. So cos of B will be C square plus A square minus opposite side, which is B square, divided by 2 times CA. Okay. Now let us talk one more. एक और रह गया है तो उसको भी क्यों ही छोड़े. तो एंगल C, एंगल C is formed by side A and side B. तो cos of C will be equal to A square plus B square minus opposite side का square, which is C square, divided by 2AB. So these are cos values for all the angles. Cos of A will be this value, cos of B will be this value, cos of C will be this value. क्या ये क्लियर है? This can also be written as, ये तो एक मेथड हो गया इसको लिखने का. This can also be written as, one sec, मल्टीप्लाई कर दो 2BC को cos A में, और देन सिंप्लीफाई करके वी कैन राइट दिस एज A square is equal to B square plus C square minus 2BC cos of A. ठीक है. सिमिलरली B square कैन बी रिटन एज C square plus A square minus 2CA cos of B, and C square can be written as A square plus B square minus 2AB
cos of c. क्लियर है? इसका भी एक बार शॉर्ट में प्रूफ देख लेते हैं. और प्रूफ हम इसलिए डिस्कस करते हैं बिकॉज अल्टीमेटली इन क्वेश्चंस ज्योमेट्री में यही तो पता लगाना है कि कहाँ पे कौन सा थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, और ये बार बार प्रूफ से और अपनी प्रैक्टिस से ही समझ में आता है. बिकॉज प्रूफ भी हमें एक अप्रोच बताते हैं कि हाउ टू अप्रोच अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या किया, वी हैव ड्रॉप्ड अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन बी सी, दैट परपेंडिकुलर इज AD. ओके, नाउ साइड opposite to angle A will be small a, side opposite to angle B will be small b, side opposite to angle C will be small c. And since our perpendicular AD ड्रॉप किया है, let us say height of AD is equal to h. Additionally, let us assume that BD is equal to, BD का कोई वैल्यू assume कर लेते हैं, let us say this is equal to m. टोटल लेंथ हमारी A है, so DC will be equal to A minus m. Okay, DC is equal to A minus m. Now focus on triangle ABD. Triangle ABD. Triangle ABD is a right angle triangle. और right angle कहाँ पे है? Angle D पे. Angle D is 90 degrees. Pythagoras लगा दो. तो we can write that C square is equal to M square plus H square. C square is equal to M square plus H square. Okay. And hence H square will be equal to C square minus M square. Isn't it so? क्या है, क्लियर है? ठीक है. सिमिलरली वी कैन अप्लाई पाइथागोरस ऑन ट्रायंगल ADC. ट्रायंगल ADC पे अप्लाई कर सकते हैं. तो ट्रायंगल ADC इज ऑल्सो राइट एंगल ट्रायंगल. B स्क्वायर विल बी इक्वल टू M स्क्वायर A माइनस M स्क्वायर. एक सेकेंड, A माइनस M स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. सो H स्क्वायर फ्रॉम this equation will be equal to B square minus A minus M whole square. Now since H तो सेम ही है हाइट दोनों ही ट्रायंगल्स के लिए, so equate these two. So H square is equal to C square minus M square and that is also equal to B square minus A minus M whole square. Simplify it, bracket open कर दो. C square minus M square is equal to B square minus A square minus M square plus 2AM. ठीक है, ब्रैकेट पूरा हमने एक्सपैंड कर दिया. ओपन करते समय साइंस का ध्यान रखना कि बाहर माइनस साइन था ब्रैकेट के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जहां पे प्लस था वहां माइनस हो जाएगा. तो माइनस M स्क्वायर से M स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. सो दिस विल बी C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2AM. इजंट इट सो? ठीक है, अब यहाँ पे समहाउ A एडिशनली हमें गिवन है जिसको कि रिप्लेस करना पड़ेगा. सो अगेन गो बैक टू द ट्रायंगल, फोकस ऑन एंगल B. तो व्हाट विल बी कॉस ऑफ B इन ट्रायंगल ABD. ट्रायंगल ABD में cos ऑफ B क्या होगा? बिकॉज हमें M को रिप्लेस करना और M कहां आ रहा है? ट्रायंगल ABD में आ रहा है. सो cos ऑफ B विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि M अपॉन या BD अपॉन AB. cos ऑफ B विल बी BD अपॉन AB which is equal to M अपॉन C. So M can be written as equal to C times cos of B. C times cos of B. रिप्लेस कर दो तो C स्क्वायर विल बी इक्वल टू B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2AC cos B. खत्म हो गया क्वेश्चन. सो नाउ दिस बिकम्स 2AC cos B. सेपरेट कर लो, A स्क्वायर B स्क्वायर को अपोजिट साइड पे लेके चले जाओ. सो दिस विल बिकम C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. अब डिवाइड कर दो 2AC से, तो डिवाइडेड बाई 2AC दिस इज इक्वल टू cos ऑफ B. हैंस प्रूव्ड. क्या ये क्लियर है? ओके ठीक है, क्या बात समझ में आती है? नो इन शॉर्ट वैल्यूज भी एक बार देख लेते हैं, साइन कॉस और टेन की, साइन और कॉस की टू बी प्रिसाइज. टेन तो आ ही जाएगा एडिशनली. ठीक है, सो फॉर वैल्यूज आर फॉर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री फॉर साइन एंड कॉस. ओके देखो, साइन एंड कॉस आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर. तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा दिस इक्वल्स कॉस थीटा एंड कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा
इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अगर मैं साइन थीटा का वैल्यू पता है तो कॉस का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉस इंप्लाइज, कॉस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जिनका कि सम 90 डिग्रीज हो, दैट इज वाई साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, तो साइन ऑफ 0 डिग्रीज इज इक्वल टू 0, साइन ऑफ 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 1/2, साइन ऑफ 45 डिग्रीज इज इक्वल टू 1/√2, साइन ऑफ 60 डिग्रीज इज √3/2 एंड साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1। अब इन सारी वैल्यूज को ऑपोजिट कर दोगे कॉस के लिए, तो कॉस ऑफ 0 क्या होगा, साइन 90 के बराबर होगा, यानी कॉस ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 1, cos of 30 will be equal to sin 60 √3/2, cos of 45 will be equal to sin 45, 45 minus 90 minus 45, so 1/√2 only, and cos of 60 will be equal to sin 30 1/2, and last cos of 90 is equal to sin of 0, which is equal to 0. Now tan is sin divided by cos, so 0 for 0 degree, 1/√3 for 30 degree, 1 for 45 degrees, √3 for 60 degrees, and undefined for 90 degrees because 1/0 is undefined. Okay, क्या है, क्लियर है? अगर फिर भी दिक्कत हो रहा है साइन की वैल्यूज को याद करने में, तो बस तुम 0 1 2 3 4 इतना लिखो, इतना तो आता होगा। ठीक है, बस ये वैल्यूज लिखो, अब सबको 4 से डिवाइड कर दो। अब 0 को डिवाइड करो नहीं करो क्या फर्क पड़ता है, बट फिर भी कर दो। अब सबका स्क्वायर रूट ले लो, सारी वैल्यूज का स्क्वायर रूट ले लो, एंड यू विल गेट करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फॉर 0 30 45 60 एंड 90 डिग्रीज फॉर साइन। क्लियर है? ठीक है, सो अब याद कर लो, ऐसे तो याद हो जाएगा, 2-4 बार लिख लो, तो कभी भी डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा फट से। ओके, क्वेश्चंस करते हैं अब स्ट्रेट अवे। फर्स्ट क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर इन द रेशियो 1:2:3, तो रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा? एंगल्स आर गिवन एज 1:2:3, तो रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा? ठीक है, व्हाट विल बी रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स? सो एंगल्स गिवन है 1 2 3, सम कितना आ रहा है, सम 1 + 2 + 3, सम है 6 यूनिट्स, और सम विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो 1 यूनिट हमारा हो जाएगा 30 डिग्रीज के, तो 1 यूनिट यानी कि फर्स्ट एंगल विल बी 30 डिग्रीज का, सेकंड होगा 60 डिग्रीज का, थर्ड होगा 90 डिग्रीज का। ओके, एंड वी नो A by sin A is equal to B by sin B, and this is equal to C by sin C. And if this equation is given, this also implies, ठीक है, इसको बिकॉज इसको कुछ कांस्टेंट के बराबर मान लो, 2r के बराबर तो होता ही है, बट इफ दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, दिस आल्सो इंप्लाइज दैट A is to B is to C is equal to sin A is to sin B is to sin C. ठीक है, तो A, B and C are 30 60 and 90, so this will be equal to sin of 30 is to sin of 60 degree is to sin of 90 degrees, और sin of 30 हो गया हमारा 1/2, sin of 60 हो जाएगा √3/2, और sin of 90 हो जाएगा इक्वल टू 1. So this will be the ratio for A, B and C. Multiply this ratio by 2 to get the final value, which will be 1:√3:2. So this will be the ratio of sides A, B and C. क्या ये पार्ट क्लियर? इज दिस क्लियर कि रेशियो हमारा आ जाएगा 1:3:2, और रेस्पेक्टिव रेशियो है ये। नाउ दिस ट्राइंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइंगल, तो इसको एक बार सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर 2 ट्राइंगल्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, 2 राइट एंगल triangles. One is of 30 60 90, 30 60 and 90, and the second triangle is 45 45 90. ठीक है, नाउ सेकंड ट्राइंगल तो बिल्कुल ही सिंपल है, 45 45 90, 2 एंगल्स आर इक्वल, तो 2 साइड्स विल बी इक्वल, और राइट एंगल ट्राइंगल है, so one angle is 90, this angle will be 45, the other angle will also be 45. ठीक है, so both sides let us say are equal to 1, so third side the hypotenuse will be equal to root of 1 square plus 1 square यानी कि √2. ठीक है, तो यहां से भी sin 45 तो निकल ही आएगा ना तुम्हारा, 1/√2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, sin 45 तो यहां से भी निकाल लोगे। ओके, क्लियर है? अगर ये ट्राइंगल याद है तो भी निकल आएगा। तो रेशियो क्या आ गया हमारा साइड्स का, रेशियो क्या आ गया 45 45 90, रिस्पेक्टिव रेशियो इज 1:1 is to √2, so 1:1 is to √2. This will be ratio of sides for respective angles. क्या है, क्लियर है? ठीक है, नाउ कमिंग टू 30 60 90 वाला ट्राइंगल। Now in this case the smallest side कौन सा होगा, 30 के करस्पॉन्डिंग,
लार्जेस्ट साइड कौन सा होगा, ऑब्वियसली 90 का करस्पॉन्डिंग। तो दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 30 डिग्रीज एंड दिस एंगल इज 60। तो स्मॉलेस्ट साइड विल बी करस्पॉन्डिंग टू 30 डिग्रीज विच इज इक्वल टू 1 एज्यूम कर लेते हैं। 60 का करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा हमारा √3 और लार्जेस्ट साइड हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √4 विच इज इक्वल टू 2। तो रेशियो ऑफ साइड्स corresponding sides is 1:√3:2। ठीक है, 30 के करस्पॉन्डिंग 1, 60 के करस्पॉन्डिंग √3 और 90 के करस्पॉन्डिंग 2। तो 1:√3:2। दोनों ट्राइंगल्स को अपने एंड पे 2-4 बार बना के प्रैक्टिस कर लेना है, इनको बार बार ऑब्जर्व कर लेना है। ठीक है, तुम्हें सारे साइन कोसाइन भी याद हो जाएंगे, 2-4 बार निकाल लोगे, इससे लिख लोगे सेपरेटली, तो सारे कोसाइन कोसाइन भी वैल्यूज याद हो जाएंगे और साथ में ये ट्राइंगल्स भी तुम्हें बाय हार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इन चीज़ों को बार बार इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ये रेशियोज तुम्हें पता होने चाहिए, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइंगल्स। तुम्हें बार बार दिखेंगे, लगातार दिखेंगे, ये तुम्हें ज्योमेट्री में भी दिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में भी दिखेगा, हाइट एंड डिस्टेंस में भी दिखेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ ट्राइंगल ABC, AB is equal to 12 cm and AC is equal to 10 cm and angle BAC is 60 degrees, so to find the side length BC. What will be value of side length BC? अब यहाँ पे क्या चीजें गिवन है, क्या चीजें गिवन नहीं है, क्योंकि हमें तो पता है अभी साइन कोसाइन पढ़ रहे हैं तो अभी साइन कोसाइन का यूज होगा, बट अल्टीमेटली एग्जाम में तो ऐसा नहीं होगा। तो एग्जाम में तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ पे कौन सा थ्योरम अप्लाई करोगे, क्या वैल्यू अप्लाई करोगे, क्या करोगे। तो हमें 2 साइड की वैल्यूज गिवन है और 1 एंगल का वैल्यू गिवन है। 2 साइड वैल्यूज आर गिवन, 1 एंगल इज गिवन, और हमसे पूछा क्या है, थर्ड साइड पूछा है। तो वी समहाउ हैव टू कनेक्ट 3 साइड्स एंड 1 एंगल, यानी कि कोसाइन अप्लाई होगा। 3 साइड्स और 1 एंगल को कनेक्ट करना है, यानी कि कोसाइन डेफिनेटली अप्लाई होगा यहाँ पे, बिकॉज कोसाइन हमें डिफाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन 3 साइड्स एंड 1 एंगल। ओके, डायग्राम बना लेते हैं। So BAC है 60 degrees, this angle is 60, AB is 12 and AC is 10, और पता लगाना है साइड BC, लेट अस से साइड BC is equal to x, साइड BC को मान लेते हैं x। ओके, अप्लाई कोसाइन, तो cos of 60 degrees will be equal to, किन 2 साइड से मिलकर बन रहा है, BA और AC से, 12 और 10 से मिलकर बन रहा है, तो 12 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, देन सब्ट्रैक्ट द ऑपोजिट साइड यानी कि x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 10, और cos ऑफ 60 कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 1/2, 1/2 होता है। तो 1/2 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर इज 144 प्लस 100 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 10, 2 तो कैंसिल आउट कर दो तो बोथ साइड्स में, 12 इंटू 10 हो जाएगा 180, तो 120 विल बी इक्वल टू 244 minus x square. So x square will be equal to 144 minus 120 and hence equal to 124. So if x square is 124, x will be equal to the square root of 124. यही आंसर हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 124 विच विल बी अप्रॉक्सीमेटली 121 का स्क्वायर रूट होता है 11 और 144 का होता है 12, तो 11.112 के आसपास कहीं वैल्यू होगा। ठीक है, ऑप्शंस गिवन होंगे डेफिनेटली, बिकॉज इंटीजर में तो आंसर आ नहीं रहा है, तो ऑप्शंस तो गिवन ही होगा, या तो रूट 124 गिवन होगा या फिर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू गिवन होगा। आंसर भी अप्रॉक्सीमेटली 11.12, 1213 जितना भी वैल्यू आएगा, बट 11.1 के आसपास होगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, एंगल्स A and C are 30 and 105 degrees respectively, and side AC is 5√2. So 2 angles are given this time, but one side is given. 2 angles and one side. तो यहाँ पे कोसाइन तो नहीं लगेगा, साइन को लगाना पड़ेगा, साइन अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज सेकंड साइड पूछा है हमसे, 1 साइड इज गिवन, 2 एंगल्स गिवन, सेकंड साइड पूछा है, तो डेफिनेटली साइड और साइन का रिलेशनशिप यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, पहले डायग्राम बना लेते हैं। अब यहाँ पे 105 देख के टेंशन मत लेने लगना, पहले डायग्राम बना लो, फिर समझ में आ जाएगी सारी बातें कि हमें तो 105 का साइन पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। सो A and C are 30 and 105 degrees, एंगल A is 30 degrees, एंगल C is 105 degrees, देखने में नहीं लग रहा है बट मान लो ये 105 है। ठीक है, और साइड AC is 5√2, साइड AC is 5√2, बट जब हम साइन अप्लाई करते हैं तो साइन किसके लिए अप्लाई करेंगे, A के ऑपोजिट साइड के लिए का रेशियो मिलेगा एंगल A के साइन से, सिमिलरली इसके ऑपोजिट साइड का रेशियो मिलेगा, बट हमें गिवन कौन सा साइड है, ये साइड गिवन है, हमें गिवन है AC, तो समहाउ हमें इसको कनेक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम दिस एंगल,
अब क्या ये एंगल पता लगा सकते हो, टू एंगल्स आर गिवन और सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इज 180, तो थर्ड एंगल पता चल जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हो, थर्ड एंगल पता चल जाएगा। थर्ड एंगल क्या होगा 135, सम आ गया हमारा, और 180 माइनस 135 करोगे, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 45 डिग्रीज, दिस विल बी इक्वल टू 45। अब मामला बन जाएगा हमें। सो वी नो दिस साइड 5√2, AC वी नो, एंगल B वी नो, पता करना है BC, दिस साइड वी नीड टू नो एंड दिस एंगल विल आल्सो नो। तो बस इन पे हम साइन लगाएंगे, ठीक है। इस एंगल से हमें कोई लेना देना नहीं, 105 से कोई मतलब नहीं है। सो दैट इज वाई 105 का साइन पता हो नहीं पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, दिस इज साइड A, दिस इज साइड B, तो A बाई साइन A इज इक्वल टू B बाई साइन B, और साइन A इज साइन 30, तो A बाई साइन 30 दैट इज इक्वल टू B है 5√2, 5√2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 45 and sin 30 is 1/2, so A upon 1/2 is equal to 5√2 upon 1/√2, और 1/√2 ऊपर जाके √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5√2 into √2, दिस विल बी 10। एक सेकेंड 5√2 अपॉन 1/√2, एक सेकेंड 5√2 के ऑपोजिट है 45, ठीक है, ठीक किया ना हम लोगों ने। तो A बाई 1/2 हो जाएगा हमारा 2A, एंड दिस विल बी इक्वल टू 5 इंटू √2 इंटू √2 10, सो 2A इज इक्वल टू 10 एंड हेंस A विल बी इक्वल टू 5, दिस विल बी इक्वल टू 5, तो BC हमारा इक्वल टू 5 आ जाएगा। क्या है, क्लियर है, ठीक है। जस्ट इन केस क्वेश्चन हमसे पूछता है व्हाट विल बी सर्कम रेडियस, ऑफ दिस ट्रायंगल, वो भी निकाल लेते, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2R एंड दिस इज इक्वल टू 10, सो 2 टाइम्स कैपिटल R इज इक्वल टू 10, सो कैपिटल R भी हमारा सर्कम रेडियस आया था 5। इज दिस क्लियर, ठीक है, वो भी निकल आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a triangle ABC, AB is equal to AC is equal to 17 centimeter and D is the point of BC such that CD is equal to 4, CD is equal to 4, AD is equal to 15 and find the length BD। तो BD वैसे तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, दिस इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, बट यहाँ पे तो BD फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट BD, व्हाट इज BD। AB and AC are 17 सेंटीमीटर, तो ट्रायंगल तो हमारा आइसोसेलेस है बिकॉज टू साइड्स आर इक्वल, एंड D is the point on BC such that CD is equal to 4, AD is equal to 15। So let us make the diagram properly. A, B, C and AB is equal to AC and both are 17। अब 17 को देख के कुछ कुछ तो होता है, बट वो कुछ कुछ यहाँ पे फायदा नहीं करेगा बिकॉज D is a point on BC such that CD 4 है और AD है 15, AD is 15 and CD is equal to 4। ओके, सो क्या राइट एंगल ट्रायंगल वाला केस बन सकता है यहाँ पे, क्या लग रहा है वैसा हो सकता है, हो तो नहीं सकता, बिकॉज इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज डेफिनेटली 15 4 17 तो राइट एंगल नहीं बना रहे, एंड दिस एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल C बिकॉज आइसोसेलेस है, 17 और 17 AB और AC इक्वल है, तो यानी कि राइट एंगल हमारा नहीं बन रहा है यहाँ पे, नॉट द केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि 8 15 17 वाला ट्रिपलेट यहाँ पे काम नहीं आएगा। इवन ये 15 दिख रहा है हमको बट 15 परपेंडिकुलर नहीं है, तो AD इज नॉट परपेंडिकुलर, ठीक है। सो बिल्कुल भी दिमाग में ये अजम्पशन नहीं ले आना है कि ये दिख रहा है हमको यहाँ पे 15 17 तो परपेंडिकुलर होगा, हमेशा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ट्रायंगल की कंडीशन पे डिपेंड करता है, और इस ट्रायंगल की कंडीशन हमें साफ साफ क्लियरली बता रही है कि दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे कहीं पे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है, AD इज नॉट परपेंडिकुलर, ठीक है, बिकॉज 17 15 8 वाला मामला फिट ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। ओके, क्या है, क्लियर है, ओके, पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए। अब समहाउ वी हैव टू अप्लाई साइन या कोसाइन, क्या अप्लाई करेंगे, हमें AB AC गिवन है, टू साइड्स का लेंथ गिवन है फॉर टू डिफरेंट ट्रायंगल्स, या फिर ABC की बात करें तो उसके दो साइड्स का लेंथ गिवन है, CD इज इक्वल टू 4 गिवन है, AD इज इक्वल टू 15 गिवन है, और BD हमें फाइंड आउट करना है, BD वी नीड टू फाइंड आउट, लेट अस से BD इज इक्वल टू X,
BD को x मान लेते हैं। तो अगर पूरे ट्रायंगल की बात करें तो देयर आर साइड 17 17 और फिर हमें 4 गिवन है, बट कोई एंगल तो कहीं पे गिवन नहीं है और एंगल फाइंड आउट कर भी नहीं पाएंगे बिकॉज तीनों साइड तो गिवन नहीं है, थर्ड साइड आधा अधूरा ही गिवन है। सो दैट इज वाई पूरे ट्रायंगल पे डायरेक्टली कॉस या कोसाइन रूल अप्लाई करके वी विल नॉट बी गेटिंग एनीथिंग। ठीक है, अगर हम इस छोटू वाले ट्रायंगल पे अप्लाई करें ट्रायंगल ADC पे, तो वी नो ऑल द 3 साइड्स, तो ट्रायंगल ADC से हमें cos ऑफ C पता लग जाएगा। तो cos ऑफ C वी कैन नो, एंड सिंस एंगल C एंड एंगल B आर इक्वल, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, तो cos ऑफ C विल बी इक्वल टू cos ऑफ B। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? cos ऑफ C इज इक्वल टू cos ऑफ B। ओके, तो अप्लाई कर देते हैं, दो ट्रायंगल्स पे अप्लाई करते हैं, ट्रायंगल ADC और फिर ट्रायंगल ABD। तो ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABD, पहले थोड़ी सी गलती करते हैं, उसके बाद में गलती करके सीखेंगे इस गलती से। ठीक है, गलती क्या, थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, फिर बाद में समझेंगे कि और बेटर क्या होता। ठीक है, तो ट्रायंगल ADC पे अप्लाई कोसाइन रूल, तो cos ऑफ C विल बी इक्वल टू, बन रहा है 4 और 17 से, तो 4 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर यानी माइनस 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 17। ओके, और cos ऑफ B क्या होगा, बिकॉज दोज आर इक्वल, तो cos ऑफ B इज इक्वल टू, फोकस ऑन ट्रायंगल ABD, तो ट्रायंगल ABD में cos ऑफ B इज इक्वल टू 17 स्क्वायर, एक सेकंड, B बन रहा है 17 से और x से, तो 17 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर एंड दिस डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एक सेकंड, 2 इंटू 17 इंटू एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर कितना आएगा, दिस विल बी 8 स्क्वायर, बिकॉज 8 15 17 वाला पाइथागोरस ट्रिपलेट है हमारा, तो ये 64 हो जाएगा, 64 प्लस 16 80, दिस इज इक्वल टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 17 इंटू एक्स। अब 2 और 17 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 से बचेगा 20, इजी ही है वैसे तो, 20x इज इक्वल 64 प्लस एक्स स्क्वायर, बस क्वाड्रेटिक बन रहा है, इतनी सी बात है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64, दिस इज इक्वल टू 0, और 64 हमारा ब्रेक हो जाएगा 16 और 4 में, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16x प्लस 64 इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सो इधर x विल बी इक्वल टू 4 और 16, बट क्या x इक्वल टू 4 हो सकता है? इज x इक्वल टू 4 पॉसिबल? क्या ये हो सकता है? होने को तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x इक्वल टू 4 इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, पॉसिबल है, या फिर x इक्वल टू 16 हो जाएगा, टू केसेस। देखो समझते हैं इस बात को, क्योंकि 4 और 16 दोनों ही तो हमारे सेटिस्फाई नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पंगा जरूर होगा। तो एक बार देखते हैं, चेक करते हैं। सो इफ लेट अस से these two sides are 17, this is 15 and this is 4, this is 4, so these two sides are equal, ये एंगल्स भी इक्वल है। ठीक है, सो डेफिनेटली सिंस दीज टू आर आल्सो इक्वल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है और फिर ये मीडियन हो जाएगा, AD विल बी मीडियन एंड इन दैट केस दिस मस्ट बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, और अगर ये परपेंडिकुलर हुआ तब तो फिर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होना चाहिए 17 15 और 4 वाला, बट इज दैट सो? इज 17 स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर? इज इट दैट वे? ऐसा तो नहीं है। एक्चुअली 17 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 15 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, isn't it so? And if that is the case, if 17 स्क्वायर लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 15 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो डेफिनेटली 17 के ऑपोजिट जो एंगल है, दिस एंगल मस्ट बी ऑब्ट्यूस एंगल, दिस मस्ट बी ऑब्ट्यूस एंगल, isn't it so? ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा।
और ये वाला एंगल भी बाय द सेम लॉजिक ऑब्ट्यूज होगा, बट दोनों का सम तो 180 होना चाहिए, यानी कि दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, दिस इज एन इम्पॉसिबल ट्रायंगल गिवन AD इज इक्वल टू 15, इम्पॉसिबल ट्रायंगल है, इजंट इट सो? तो ये तो बन ही नहीं सकता। क्या ये समझ पा रहे हो? बिकॉज ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए हमें, हमें एंगल ADB भी चाहिए ग्रेटर देन 90 डिग्रीज एंड एंगल ADC भी चाहिए ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, विच इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। So definitely this cannot be equal to 4. So the only possibility is that this is equal to 16. 4 नहीं हो सकता, this can only be 16. BD can only be 16. So BD will be equal to 16. This will be our answer. Is that clear? ठीक है, अब बेटर अप्रोच देखते हैं कि कैसे और हम अप्लाई कर सकते थे कोसाइन, जहां से कि चीजें इजीली हमारे लिए सॉल्व होती, इजीली हम विजुअलाइज कर पाते। तो whenever there is isosceles triangle, which it is in this case, these two sides are 17, this is 15, this is 4, and we need to find the length BD. ठीक है, BD we need to find out. So definitely हमें एंगल C पे तो कोसाइन अप्लाई ही करना पड़ेगा, बट एंगल B पे when we are applying cosine, because B and C are equal, angle B is equal to angle C, so we must not be applying cosine on triangle ABD. Instead we should be applying it on triangle ABC. तो एंगल B पे तो अप्लाई करेंगे कोसाइन, बट कोसाइन अप्लाई करेंगे पूरे ट्रायंगल ABC पे। क्यों अप्लाई करेंगे? बिकॉज इन दैट केस दीज आर टू साइड्स आर इक्वल, 17 एंड 17, दे विल गेट कैंसल्ड आउट। जब कोसाइन रूल अप्लाई करोगे, जब हम लिखेंगे पूरा राइटअप लिखते हैं, तो समझ में आएगा कि 17 17 तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो cos B इज इक्वल टू cos ऑफ C, तो cos ऑफ B इन दिस केस इन ट्रायंगल ABC दैट विल बी इक्वल टू 17 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो 17 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू x प्लस x प्लस 4 स्क्वायर, बिकॉज BC इज x प्लस 4, माइनस 17 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 17 इंटू x प्लस 4, ये तो कैंसिल आउट हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू cos ऑफ C, और cos ऑफ C हमारा कितना है? दिस इज 17 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 17 इंटू 4, 2 इंटू 17 भी कैंसिल आउट हो गया। x प्लस 4 स्क्वायर डिवाइड बाई x प्लस 4 बचा, तो x प्लस 4 भी एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ x प्लस 4, एंड दिस इज 64 प्लस 16 80 बाई 4 विच इज इक्वल टू 20, सो x प्लस 4 विल बी इक्वल टू 16, सॉरी 20 है, x प्लस 4 इक्वल टू 16 नहीं आएगा, x विल बी इक्वल टू 16। डायरेक्टली हमें आंसर मिल गया, isn't it so? क्लियर है? ठीक है, क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ओके, so x equal to 16 will be the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In a triangle, the length of two larger sides are 15 and 13 centimeter. The angle of a triangle are in arithmetic progression. तो length of the remaining side क्या होगा? Angle of the triangle are in arithmetic progression. तो what will be length of the remaining side? Pause the video, try to solve it. Take your time, थोड़ा सा टाइम लो इस क्वेश्चन के पीछे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एंगल्स, तो यहाँ से क्या कोई एंगल फाइंड आउट कर सकते हो? Can you find out one of the angles? Well, let us say angles are अल्फा, अल्फा माइनस थीटा एंड अल्फा प्लस थीटा। एपी में है इसलिए ऐसे एज्यूम किया। सम विल बी इक्वल टू 3 अल्फा एंड सम विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। 3 अल्फा इज इक्वल टू 180, सो दैट इंप्लाइज दैट अल्फा विल बी इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो वन ऑफ द एंगल्स वी फाउंड आउट, वन ऑफ द एंगल विल बी 60। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। One angle is 60 degrees. Let us say this is angle is 60 degrees. Other angle will be, one angle will be 60 minus theta and one angle will be 60 plus theta. Now, we have been given that length of two larger sides, very important, two larger sides are 15 and 13 centimeter. तो 15 और 13 हमारे larger sides की dimensions है, तो यानी कि एक जो साइड बचा है that remaining side will be smaller side, smallest side, this will be smallest side.
और अगर ये सबसे छोटू वाला साइड है, सबसे स्मॉलेस्ट साइड है, तो स्मॉलेस्ट साइड किस एंगल के ऑपोजिट होगा? सबसे छोटे एंगल के ऑपोजिट होगा, बिकॉज साइड ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज द लार्जेस्ट साइड एंड साइड ऑपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल इज द स्मॉलेस्ट साइड. तो स्मॉलेस्ट एंगल हमारा कौन सा है? 60 माइनस थीटा. तो स्मॉलेस्ट साइड लेट अस से x विल बी ऑपोजिट टू दिस वन. Isn't it so? And largest side कौन सा है? 15 और 13 में 15 है, तो that will be opposite to the largest side, largest angle, which is 60 plus theta. So this side will be 15, and then opposite to 60 degrees will be 13. क्या ये बात समझ पा रहे हो? Because this was the most important part of this question. क्या ये appreciate कर पा रहे हो? I repeat, smallest side will be always opposite to smallest angle, and largest side will be always opposite to largest angle. ठीक है? So सबसे पहले y आइडेंटिफाई करना था. 15, 13, x अरेंज कर दिया हमने. अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. दिस एंगल वी नो, बस इस पे अप्लाई कर दो कोसाइन. जिस एंगल को जानते हो, इसको जानते ही नहीं, उसके बारे में क्यों टेंशन लेना? जो जानते हो बस उसके बारे में सॉल्व करो, उसको देखो, उसकी फिक्र करो. सो फॉर दिस एंगल cos ऑफ 60, दिस विल बी इक्वल टू, दीज टू साइड्स आर मेकिंग इज, तो 15 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 15 इंटू एक्स. एंड cos ऑफ 60 कितना होता है? 1/2 होता है. तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2. 2 से कैंसिल कर दो 2 को, तो 15 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 30 माइनस 13 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 15 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर कितना होगा? 15 प्लस 13, 15 माइनस 13 यानी 2 इंटू 28, 56. तो एक्स स्क्वायर प्लस 56 इज इक्वल टू 15x. सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 इज इक्वल टू 0. और 15 को दो पार्ट में ब्रेक करोगे, 7 और 8, तो हमारे रूट्स आ गए 7 एंड 8. तो x can be equal to 7 or 8. So in this case, remaining side can be 7 or 8. 7 or 8 will be our answer. Okay, clear है? It could be 7 or it could be 8. Next question. Side AB of a triangle ABC is 80 centimeter long, whose perimeter is 170 centimeter. If angle ABC is equal to 60 degrees, the shortest side of the triangle ABC क्या होगा? Side AB is 80 centimeter, perimeter है 170 centimeter, angle ABC 60 degrees है, तो shortest side क्या होगा? Again, let us draw a diagram first. ABC is 60. This angle will be 60 degrees and side AB is 80, so this side is 80. Additionally, perimeter is 170. Sum of all the sides, this side is A, this side is B, this side is C, sum of all these sides is equal to 170. A plus B plus C is equal to 170. C is equal to 80, तो A plus B कितना आ जाएगा? Equal to 90. ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 90. तो अगर एक साइड हमारा A है, सेकंड साइड B कैन बी अज्यूम्ड एज 90 माइनस A. अगर 80 हमारा एक साइड था, तो वन साइड इज A, तो थर्ड साइड हमारा 90 माइनस A हो जाएगा, सम हमारा 170 आ जाएगा. और ABC 60 है, अप्लाई द कोसाइन, बिकॉज एक ही एंगल पता है, तो कोसाइन कोसाइन बोल रहे हैं, हाँ कोसाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा. 80 90 माइनस A और A पे अप्लाई कर दो कोसाइन. तो cos ऑफ 60 डिग्रीज which is equal to 1/2 will be equal to 80 square plus A square minus 90 minus A का whole square divide by 2 into 80 into A. ठीक है, सो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा. 80A will be equal to 80 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 90 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 180. सो A स्क्वायर से A स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी चीजों को ध्यान देना पड़ेगा. 80 स्क्वायर माइनस 90 स्क्वायर प्लस 180 है. एक सेकेंड, हाँ ठीक है, प्लस 188, दिस इज इक्वल टू 80A. सो 90 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100A. 100A हो जाएगा. तो बस 100 को कॉमन ले लो, 10 स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर.
एंड दैट इज इक्वल टू 100 है, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, ए विल बी इक्वल टू 81 माइनस 64, दैट विल बी इक्वल टू 70. ऑप्शन बी आंसर है, ए इज इक्वल टू 17. शॉर्टेस्ट साइड विल बी 17. बट चेक भी जरूर करना लास्ट में, यहाँ तो वैल्यू देख के समझ में आ रहा है शॉर्टेस्ट है, बिकॉज सेकंड साइड इज 90 माइनस ए, अदरवाइज चेक जरूर करना पड़ेगा कि 90 माइनस ए कितना होगा. दिस विल बी 73. एक साइड हुआ 80, एक हुआ 73, थर्ड आया 17, 17 इज द स्मॉलेस्ट, आंसर विल बी 17 ओनली. ओके, क्लियर है, 17 आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. In a triangle ABC, if AB and C are side lengths of the triangle such that A plus B plus C into A minus B plus C is equal to 3AC, then find the value of angle B in degrees. बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू एनालाइज व्हाट वी शुड अप्लाई हियर. तो अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से तो आइडिया लगी क्या होगा. ट्राई करो. In triangle ABC, side lengths are given. Side lengths are not given, but their relationship is given. A plus B plus C into A minus B plus C, that is given as 3AC. And we need to find out angle B. तो तीनों साइड लेंस का आपस का रिलेशनशिप इज गिवन एंड वी नीड टू फाइंड आउट द एंगल. तो चांसेस आर दैट कोसाइन यहाँ पे अप्लाई हो, ठीक है, या फिर इट माइट बी इक्वल टू 90 डिग्रीज. हो सकता है कि सब कुछ कैंसिल आउट हो जाए, अभी नहीं पता, अभी हमने सॉल्व थोड़ी किया, तो 90 डिग्री होना भी पॉसिबल है और कोसाइन अप्लाई होगा. देखते हैं. So let us simplify this. This is A plus B plus C, यानी कि A plus C plus B, the first bracket, और second bracket क्या है, A plus A minus B plus C, यानी A plus C minus B. तो second bracket है हमारा A plus C minus B, and this is equal to 3AC. So this is similar to A plus B into A minus B. So that will be equal to A plus C whole square minus B square, and that is equal to 3AC. Expand this, तो a square plus c square plus 2ac minus b square, this is equal to 3ac. So this becomes a square plus c square minus b square. 2ac को राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ तो माइनस 2ac हो जाएगा. So this will be equal to ac. So a square plus c square minus b square, this is equal to ac. And we know that cos of b, since angle b ही फाइंड आउट करना है, cos of b is equal to a square plus c square minus b square divided by 2ac. तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2ac. राइट हैंड साइड बिकम्स 1/2 एंड लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स cos of b. तो cos of b, this is equal to 1/2 and hence b will be equal to 60 degrees. Because of cos of 60 is equal to 1/2. तो आंसर हमारा आ जाएगा दैट b is equal to 60 degrees. क्या ये क्लियर है? ठीक है, इज दिस क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल ABC is 6 times the arithmetic mean of the sines of the angles. Sine values of the angles. If the side length A is 1, then find the angle A in degrees. If it is an acute angle. Now क्वेश्चन चीख के कह रहा है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ द साइंस, यानी कि साइन रूल तो अप्लाई यहां पे करना ही पड़ेगा. साइंस के अरिथमेटिक मीन ये 6 टाइम्स है पेरीमीटर एंड साइड लेंथ ए इज आल्सो गिवन एज इक्वल टू 1. तो वी टू फाइंड आउट एंगल ए क्या होगा इफ इट इज एन एक्यूट एंगल, यानी कि लेस देन 90 डिग्रीज है. फाइन, अप्लाई करते हैं, ट्राई करते हैं. पेरीमीटर इज 6 टाइम्स, तो पेरीमीटर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. दिस इज 6 टाइम्स ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ द साइंस. तो साइन वैल्यूज क्या है हमारा, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, और उनका अरिथमेटिक मीन विल बी डिवाइडेड बाय 3 and 6 times of that is equal to perimeter. So this is our equation, but the problem is we know a upon sin a, this is equal to b upon sin b, this is equal to c upon sin c. बट हमें तो गिवन है a प्लस बी प्लस सी और राइट हैंड साइड में है sin a प्लस sin b प्लस sin c. तो क्या जुगाड़ करेंगे यहाँ पे, 3 डिफरेंट रेशियोज आर देयर. सो इफ इन अ रेशियो वी हैव बीन गिवन x by a is equal to y by b, तो वी कैन कंक्लूड दैट दिस विल बी इक्वल टू x प्लस y अपॉन a प्लस b. कोई दिक्कत, ऐसे तो लिख सकते हैं. ठीक है, सिमिलरली हियर वी कैन राइट दिस एज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b प्लस साइन ऑफ c.
ओके, क्या ये क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? और अगर ये बात क्लियर है तो बस इसकी वैल्यू तो हमें पता है, डिवाइड कर दोगे साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी से, तो क्या वैल्यू आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू विल बी 6/3, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू 2. दिस विल बी इक्वल टू 2 फ्रॉम दिस इक्वेशन. ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, दिस विल बी इक्वल टू 2. क्वेश्चन खत्म हो गया, बिकॉज ए इज इक्वल टू 1, साइड लेंथ ए इज इक्वल टू 1, तो साइन ए की वैल्यू यहां से पता चल जाएगा. तो 1 अपॉन साइन ए, दिस इज इक्वल टू 2, तो साइन ऑफ ए विल बी इक्वल टू 1/2. And if sine of a is equal to 1/2, we know sine 30 is equal to 1/2. So a will be equal to 30 degrees. But this is incomplete solution of this question. Complete solution क्या होगा? Sine of 180 minus theta is also equal to sin theta. ठीक है? So that is also equal to sin theta. यानी कि sine of 180 minus 30 will also be equal to sin 30. और 180 माइनस 30 का मतलब कितना हुआ? 150 डिग्रीज. साइन ऑफ 150 इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2. सो ए कैन बी इक्वल टू 30 डिग्रीज और 150 डिग्रीज. दोनों सॉल्यूशंस होंगे 30 एंड 150. बट टू क्लियर दैट डाउट, इट इज ऑल्सो मेंशन दैट इट इज एन एक्यूट एंगल. एक क्यूट एंगल है, तो क्यूट वाला एंगल अपना कौन सा है? क्यूट वाला एंगल है मतलब 30 वाला. 150 तो क्यूट नहीं है, ऑब्ट्यूस है. ठीक है, सो क्यूट वाला एंगल विल बी द आंसर, 30 डिग्रीज. क्लियर है? ओके. अगर इस क्वेश्चन में मुझसे सर्कम रेडियस ही पूछता तो वो भी निकाल लेते, बिकॉज वी नो दैट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2r. सो सर्कम रेडियस विल बी इक्वल टू 1 ओनली. ओके, ठीक है, क्लियर? ओके, अब एक छोटी सी चीज और डिस्कस कर लेते हैं बिफोर रैपिंग अप द सेशन. एक इंपॉर्टेंट थ्योरम भी डिस्कस कर लेते हैं. This is triangle ABC and from vertex A, एक सेकंड दोबारा से इस लाइन को बनाते हैं. From vertex A we are drawing a median AD. So since AD is the median, so it divides BC into two equal halves. तो BD will be equal to CD. ठीक है, AD is the median. So BD will be equal to CD. Okay. Now let us say this angle is theta. Okay. AB के ऑपोजिट A हो गया साइड, एंगल B के ऑपोजिट B हो गया, एंगल C के ऑपोजिट C हो गया. ठीक है, साइड लेंथ हमने एज्यूम कर लिया, और दैट वे दिस विल बी लेट अस से इक्वल टू m. ठीक है, a/2 की जगह m लिख देते हैं और इसको भी m मान लेते हैं बिकॉज बोथ आर इक्वल. ठीक है, m इज ऑब्वियसली इक्वल टू a/2 बिकॉज मीडियन है. ऑल्सो दिस एंगल विल बी 180 माइनस थीटा. ओके, बट cos ऑफ 180 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस cos थीटा. ठीक है, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, बट cos ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में cos इज नेगेटिव जबकि साइन पॉजिटिव होता है. ठीक है, सो अब इसको अप्लाई करते हैं ऑन बोथ दीज ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD. लेट अस अप्लाई कोसाइन रूल. कोसाइन रूल अप्लाई करते हैं. ठीक है, सो बाय द कोसाइन रूल AB स्क्वायर, या फिर लिख दो पहले cos थीटा लिख देते हैं, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू AD स्क्वायर. AD को क्या मान लें? AD को मान लेते हैं अपन H मान लेते हैं. तो H स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस C स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2HM. ठीक है, सो दैट वे H स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू 2HM cos थीटा. This is our first equation for triangle ABD. Similarly for triangle ACD, cos of 180 minus theta, this will be equal to H square plus M square minus B square divided by 2HM.
So this will be equal to h square plus m square minus b square, and this is equal to 2hm cos of 180 minus theta. But since cos of 180 minus theta is minus cos theta, so this will be equal to minus 2hm cos theta. This is our second equation. Now add these two equations, equation number 1 and equation number 2. So 2hm cos theta and 2hm cos theta will get cancelled out. ये तो cancel out हो जाएगा because first में positive sign के साथ है, second में negative sign के साथ है, cancel out हो जाएगा. Left hand side वाला value बचेगा सिर्फ. So this will be equal to 2 times h square plus 2 times m square minus b square minus c square, which is equal to 0. Okay, so that applies that b square plus c square is equal to 2 times h square plus m square. Okay, 2 times h square plus m square. This is m, this is m, this is h. B and C. So basically B square is AC square. So AC square plus C square is AB square. AC square plus AB square is equal to 2 times AD square plus BD square. Important result. And this is what is Apollonius theorem. Apollonius theorem that connects median, relationship between median and side lengths. AC square plus AB square is equal to 2 times AD square plus BD square. ठीक है, because AD is the median. क्या ये क्लियर है? क्या रिजल्ट समझ में आ रहा है? सो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर का रिलेशनशिप हमें मिल गया AC स्क्वायर और AB स्क्वायर से. सिमिलरली वी कैन राइट, अगर एक और मीडियन ड्रॉ कर लें, BE in the similar fashion. So if we are doing BE, AC will be equal to AE, sorry, CE will be equal to AE. ठीक है, बिकॉज BE इज मीडियन. तो फॉर BE एज अ मीडियन क्या देगा रिलेशनशिप हमारा? दीज टू साइड्स BE हमारा आ रहा है, AC को बाइसेक्ट कर रहा है. ठीक है, सो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर will be equal to 2 times BE स्क्वायर प्लस बोथ CE एंड AE आर इक्वल, तो किसी भी एक को लिख दो, तो प्लस AE स्क्वायर. ठीक है, जैसे फर्स्ट केस में था हमारा मीडियन था AD. ठीक है, तो मीडियन AD वर्टेक्स A से आ रहा है, वर्टेक्स A पे दो साइड्स हमारी ज्वाइन हो रही है AB एंड AC. तो AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और BD स्क्वायर जैसे CD स्क्वायर भी चलेगा बिकॉज BD एंड CD आर इक्वल. सिमिलरली इफ यू ड्रॉ अनदर मीडियन, और उनकी मीडियंस हमारी कॉन्करेंट होंगी सारी की सारी, सो दिस थर्ड मीडियन इज CF. सो AF विल बी इक्वल टू BF. सो CF एज द मीडियन will give us result because CF हमारी ड्रॉ हो रहा है कहां से? वर्टेक्स C से. वर्टेक्स C पे दो साइड्स हमारी CA और CB, तो CA स्क्वायर प्लस CB या फिर BC स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स CF स्क्वायर प्लस AC और AF और BF में से कोई भी एक लिख लो, तो प्लस AF स्क्वायर. तो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ मीडियंस एंड साइड्स का कनेक्शन. क्या क्लियर है? Is this part clear? ठीक है. Now let us draw isosceles triangle and apply the same result over there. So ABC is the isosceles triangle. AD is our median. Median हमने ड्रॉ किया. So if AD is median, so BD will be equal to CD and AB square plus AC square, but this time AB and AC are equal. So AB square plus AC square क्या हो जाएगा? This will be 2 times AB square is equal to 2 times of AD square plus BD square. 2 से 2 cancel out हो जाएगा. So AB square will be equal to AD square plus BD square, and that implies that AB is the hypotenuse of triangle ABD. AB square is equal to AD square plus BD square. So AD must be perpendicular to it as well. हमने ड्रॉ किया था मीडियन, बट दैट मीडियन इज ऑल्सो एल्टीट्यूड बिकॉज दैट AD इज परपेंडिकुलर टू BC as well, isn't it so? So that AD is not just a median, but this is also an altitude. Is that clear?
क्या बात समझ में आती है? ओके now let us draw a parallelogram. AB, CD, and draw the diagonals. So diagonals of a parallelogram bisect each other. They bisect each other, and in a parallelogram, AD is parallel to BC, and AB is also parallel to CD. Additionally, diagonals bisect, so let us they are intersecting at point O. तो AO will be equal to CO, and similarly DO will be equal to BO. अच्छा, AO और CO इक्वल है, DO और BO इक्वल है, सब इक्वल नहीं है, ठीक है. सो AO is equal to CO and BO is equal to DO. बट AO और BO का इक्वल होना जरूरी नहीं है. दे कैन बी इक्वल इन सम स्पेशल केस, अदरवाइज दे आर नॉट. इन जनरल दे आर नॉट, ठीक है. सो इन ट्रायंगल ABD, कैन यू सी दैट AO इज मीडियन? ट्रायंगल ABD में AO मीडियन है, AO इज मीडियन, एंड इफ AO इज मीडियन तो यहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं अपोलोनियस. सो वी कैन राइट सिंस AO मीडियन इज ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स A, तो वर्टेक्स A से हमारी टू साइड आ रहा है AD और BD, तो AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर लिख दो, एंड AO इज इक्वल टू AC बाई 2, BO इज इक्वल टू BD बाई 2. ओके, क्या है, क्लियर है? तो बस रिप्लेस कर दो, AO की जगह AC बाई 2 लिख दो, BO की जगह BD बाई 2 लिख दो. तो दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AO स्क्वायर इज AC स्क्वायर बाई 4 एंड BO स्क्वायर इज BD स्क्वायर बाई 4. सो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 2 आ गया. सो बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. एंड सिंस AB in the parallelogram, side AB is equal to side CD and side AD is equal to side BC. So 2AB square will be equal to AB square plus CD square लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं. और सिमिलरली 2AD square will be equal to AD square plus BC square, तो AB square plus BC square plus CD square plus DA square, this is equal to sum of squares of diagonals AC square plus BD square. The parallelogram law. दिस इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम अपोलोनियस थ्योरम. क्या है, क्लियर? ठीक है, ओके, इज दिस क्लियर? सो इतना ही रखते हैं सेशन में. आई बिलीव दैट इज द लास्ट थिंग दैट वी आर डिस्कसिंग इन दिस सेशन. नेक्स्ट सेशन विल बी डूइंग एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स. और आई बिलीव जो भी हमने इस सेशन में डिस्कस किया तुम्हें समझ में आएगा, मजा आएगा सेशन में, डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और चीज़ों का अप्लाई करना भी, सीखने के तरीके भी समझ में आए होंगे. एंड मेक श्योर टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट्स, एंड इफ यू लाइक द सेशन तो मेक श्योर यू लाइक बटन एज वेल. ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग.